Hello, my dear students. I hope you all are doing fine. And with this positive thought, I'll start with chapter number 7, sampling methods. Now, sample, not at all a new word for you people, but still we will be studying about population and sample in the beginning part of the chapter. So, students, yes, as I said, population and sample, we start with the meaning of it. A set or a group of all the units or items under study is called population. Population you have already done in chapter number 1, but still over here it is repeated. You all know a set or a group of all the units or items under the study. आगे एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन किया गया है, बट यस अगर मुझे मेरा एग्जाम्पल देना हो तो फॉर एग्जाम्पल if I want to know about the literacy level of a particular area, then all the people staying in that area will be my population. Now let us move on to the meaning of sample. A set or a group of units selected from a population on basis of some definite criteria is called a sample. Now sample इसका मतलब होता है कि population में से जब हम कुछ यूनिट्स सिलेक्ट करते हैं, yes over here criteria important है, on some definite criteria के बेस पे जो सिलेक्ट होते हैं यूनिट्स पॉपुलेशन में से उन्हें सैम्पल कहते हैं. जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैंने लिटरेसी रेट का एग्जाम्पल दिया आपको, तो वहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग रहते हैं, छोटा सा एरिया है, 1000 लोग ही रहते हैं वहाँ पे. तो वहाँ से जो मैंने सपोज करो 150 लोगों को सिलेक्ट किया, तो वो सिलेक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सम particular criteria and that is known as sample. Now let us move on to the example of your textbook, which says that suppose we want to study the IQ level of the students in standard 12 of Gujarat board, then all 12 standard students of Gujarat board is population. Yes, अगर हमने सबको इंक्लूड किया, सारे बच्चे जो 12th स्टैंडर्ड में हैं, गुजरात बोर्ड में है, देन वो सारे के सारे पॉपुलेशन कहलाएंगे. इफ वी सिलेक्ट 1000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात बोर्ड बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, देन सेट ऑफ दीज 1000 स्टूडेंट बिकम्स आवर सैम्पल. यस, और अगर हम जो इतने सारे लाखों में बच्चे जो हैं 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड में से, उसमें से हम 1000 को सिलेक्ट करते हैं ऑब्वियसली बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, देन दोज 1000 स्टूडेंट्स become a sample. Now selection of sample is often used in day to day life. Yes, ये एक day to day life में हम frequently हम अक्सर use करते हैं sample. Now examples इसके दिए हुए हैं, real life examples दिए हुए हैं. Before purchasing vegetables or fruits, we select and inspect a few from the whole lot of vegetables and fruits that shopkeeper has. All vegetables or fruits this shopkeeper has is the population, and few selected vegetables or fruits is the sample. Now over here it says that example से बहुत अच्छे से समझाया गया है. Yes, as I said, real life example कि जब हम परचेजिंग करने जाते हैं वेजिटेबल्स की, सब्जियों की, फ्रूट्स की, तो जो भी सब उसके पास वेजिटेबल्स होती हैं वो सब का सब पॉपुलेशन होता है, और जो हम हमारे लिए सिलेक्ट करते हैं दैट इज द सैम्पल, यानी कि वो मुझे अपने लिए सही लगा. Now a sample can be selected with or without replacement from population. Yes, इसका selection with or without replacement हो सकता है. A sample in which each unit is selected from population after replacing the unit selected earlier in the population is called sample with replacement. Now I'll explain you this with example. It says that suppose करो एक बास्केट है, उसमें 10 बॉल्स रखे गए हैं और वो 10 बॉल्स को नंबर दिया गया है, 1 से लेके 10 तक उन सारे बॉल्स को नंबर दिया गया है, और उसमें से मेरे को बॉल्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं. नाउ एज अ सेट सैम्पल विद रिप्लेसमेंट है, तो सपोज करो मैंने एक बॉल निकाला, वो सपोज करो नंबर 2 का था, तो फिर जब मेरे को, हाँ वो पॉपुलेशन में जैसे मैंने बोला 10 बॉल्स हैं और उसमें से मेरे को
सपोज करो 5 बॉल्स निकालने हैं, तो 5 बॉल्स में से जैसे मैंने बोला मैंने पहला बॉल निकाला, तो पहला बॉल 2 नंबर का था, तो विथ रिप्लेसमेंट है, यानी कि जब मेरे को नेक्स्ट बॉल सेलेक्ट करना हो तो मैं उसके पहले वो जो बॉल मैंने निकाला जो 2 नंबर का था वो बॉल मैं वापस अंदर वो बैग में या बास्केट में उसको वापस डालूंगी। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पे मेरे पास एक बैग है, उसमें 10 बॉल्स है, 10 इज अ पॉपुलेशन, और उसमें से मुझे सपोज 5 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे सबको नंबरिंग दे दी जाएगी 1 से लेके 10 तक। एंड जब मैं बॉल मैंने निकाला तो पहला बॉल जो था वो 2 नंबर का था, तो अब जब मेरे को दूसरा बॉल निकालना है तो उसके पहले मैं वो बॉल जो है, जो 2 नंबर वाला बॉल जो है, वो मैं वापस बास्केट में या बैग में डाल दूंगी। सो दैट इज सैम्पल विद रिप्लेसमेंट। नाउ अ सैम्पल इन विच each unit is selected from the population without replacing the unit selected earlier in the population is called sample without replacement. Similarly, if units are selected simultaneously from the population, then it is called sample without replacement. Now, अब sample without replacement obvious सी बात है, सेम एग्जाम्पल से मैं कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे भी मेरे पास एक बास्केट है, उसमें 10 बॉल्स हैं, सबको नंबरिंग दे दिया गया है। अब मुझे 5 सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे मैंने निकाला सेम, पहले 2 नंबर वाला बॉल निकला, तो जो 2 नंबर वाला बॉल निकला उसको मैंने साइड में निकाल के रख दिया। अब क्योंकि दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे जब मैं सेकंड बॉल सिलेक्ट करने जाऊंगी तब वो 2 नंबर वाले बॉल को अंदर नहीं डालूंगी, बिकॉज इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मुझे उसको वापस रिप्लेस नहीं करना। सो बेसिक जो सैम्पल विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में था कि विथ रिप्लेसमेंट में ना रिपीट हो सकता है, क्योंकि मैं बॉल वापस अंदर डाल रही हूँ, तो जब मैं वापस से बॉल निकालूंगी से 3rd टाइम या 4th टाइम या 5th टाइम भी, तो वो बॉल जो है 2 नंबर वाला रिपीट हो सकता है। सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट में रिपीट नहीं होता है। नाउ सेम थिंग जब सम्स करेंगे तब और धीरे धीरे आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू पॉपुलेशन इंक्वायरी एंड सैम्पल इंक्वायरी। नाउ there are 2 methods of collecting information or data about the population under study. The inquiry in which information is collected from each and every unit of population is called population inquiry or census survey. Yes, again same thing, ये आप लोगों ने किया हुआ है। Population inquiry means the inquiry in which information is collected. हमने सब जो भी मेरा पॉपुलेशन था सबसे मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन इंक्वायरी और सेंसस सर्वे। सेम जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जो एरिया में पर्टिकुलर लोग रहते हैं उनका लिटरेसी मुझे जानना है, तो मैं 1000 से जब मैं इन्फॉर्मेशन लेती हूँ तो दैट इज पॉपुलेशन इंक्वायरी। Now, the census survey conducted every 10 years in India is example of population inquiry. Yes, हर 10 साल population inquiry होती है। आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे घर पे आते हैं एंड दे आस्क अस डिफरेंट क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी पीपल आर स्टेइंग एट योर होम, एंड कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, द एजुकेशन लेवल, एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली, ये सब क्वेश्चंस वो पूछते हैं इंडिया के हर घर में जाके। सो ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर इंक्लूडेड। सो यस, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन इंक्वायरी। सबसे इंफॉर्मेशन लिया जाता है। सपोज दिस स्टडी इज अबाउट मार्क्स ऑफ 11th and 12th standard students of a particular school, and we collect marks of each and every 11th and 12th standard student of that school, then it is population inquiry. Yes, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को पॉपुलेशन इंक्वायरी का दिया हुआ है कि अगर हमें 11th and 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल के, उनके बारे में हमको जानना है, उनके मार्क्स के बारे में हमको जानना है, तो अगर मैंने सबका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया तो दैट इज पॉपुलेशन इंक्वायरी, बिकॉज ऑल
are included. Now, inspection of all the votes cast during a particular election is another example of population inquiry. Yes, votes counting में सबको include किया जाता है. The inquiry in which the information is collected from few units selected from population is called sample inquiry or sample survey. Yes, sample में yes you all know कि sample में क्या होता है, कुछ ही यूनिट्स को स्टडी किया जाता है और वो कुछ यूनिट्स का सिलेक्शन एक पर्टिकुलर डेफिनेट क्राइटेरिया पे होता है. Suppose the study is to analyze spending habits of the students of a particular college. If we collect the information of spending habits of few students selected with definite criteria of that college, then it is example of sample inquiry. Yes, यहाँ पे जब हम information या example जो दिया हुआ है कि हमें एक पर्टिकुलर कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी जो पैसा खर्च करने की आदतें हैं उनके बारे में जानना है. तो अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं कुछ ही स्टूडेंट्स से कलेक्ट करती हूँ, यस सेम थिंग इज रिपीटेड सिलेक्टेड विद डेफिनेट क्राइटेरिया ऑफ दैट कॉलेज, दैन इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सैम्पल इंक्वायरी. अगेन एक आपको बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में. इट सेज दैट कि जब हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमारा थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है. सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सैम्पल सर्वे. टेस्टिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सैम्पल इंक्वायरी. यस, ब्लड ग्रुप जानने के लिए हो, कोई डिजीज जानने के लिए हो, या से फॉर एग्जाम्पल जिनको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का क्या लेवल है, इट्स विद इन द रेंज और व्हाट, तो that is example of sample inquiry. The procedure of selecting a sample from the population is called sampling. Yes, जो procedure होता है, जो method होता है sample select करने का population में से, उसे हम sampling कहते हैं. Now, अब हमें sampling की आखिर ज़रूरत क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं ये काम? What is the need? Why do we need it? हमें इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो इधर हम स्टडी करेंगे. ना वी ऑफन यूज सैम्पलिंग इन रियल लाइफ. यस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे भी, जैसे कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला एग्जाम्पल, ब्लड ड्रॉप वाला एग्जाम्पल, तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है. द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री randomly selects a few units from total production to check the quality of units produced. Yes, जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की और उन्होंने 1000 बल्ब्स प्रोड्यूस किए हैं, तो वो 1000 में से कुछ सिलेक्ट करेंगे बल्ब्स चेक करने के लिए उनका क्वालिटी. आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ होता है, QC चेक, दैट इज क्वालिटी चेक, क्वालिटी पास, ऐसे लिखा हुआ होता है. सो यस, दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड सैम्पलिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट वील बी स्टडिंग द अदर रीजन्स ऑल्सो. नाउ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट फैक्ट्री इज कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन एंड फ्यू यूनिट सेलेक्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिटी बिकम्स अ सैम्पल. यस, वो तो ऑब्वियस ही बात है, पढ़ चुके हैं हम इसको. द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग सम मिल्क फॉर डिटरमाइनिंग द फैट from the milk brought by milkman to the dairy, checking the blood sample of few patients suffering from a particular disease to detect the cause of disease, etc. are other examples of sampling. Again same चीज़ है, यहाँ पे आपको sampling बताया गया है, उसका मीनिंग हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. यहाँ पे आपको उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. या दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम लोग कोई मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो वी टेक जो स्वीट मुझे परचेज करनी है उसको टेस्ट करने के लिए मैं बहुत थोड़ा सा एक पीस उसमें से लेती हूँ इन ऑर्डर टू टेस्ट इट. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सैम्पलिंग. नाउ सैम्पलिंग इज इनएविटेबल इन फॉलोइंग कंडीशंस. पहला कंडीशन है द नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज. जब नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं तब उस कंडीशन में सैम्पल इंक्वायरी इज द ऑप्शन. नेक्स्ट, एक्चुअली द ओनली ऑप्शन. नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर स्प्रेड ओवर वाइड जोग्राफिकल एरिया. अगर बहुत दूर दूर है हमारा पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो
इतना सबको स्टडी करना विल बी ऑब्वियसली टायरिंग, तो उस केस में भी सैम्पल इंक्वायरी होता है. The third one is the units under inquiry are to be destroyed. That is when inspection of units is destructive in nature. That is inquiry of life of electric bulb. Yes, electric bulb जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वहाँ पे जो फर्म है, एक पर्टिकुलर फर्म है, सपोज उसने 1000 बल्ब्स प्रोड्यूस किए, तो वो 1000 के 1000 का अगर क्वालिटी चेक करने बैठेंगे तो या जानना होगा उनको कि वो कितना घंटे चलते हैं, तो सारे के सारे 1000 बल्ब्स को अगर वो चेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑल द यूनिट्स विल बी डिस्ट्रॉयड, तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान हो जाएगा और ऐसा कोई फर्म चाहेगी नहीं. तो इस कंडीशन में थोड़े से ही यूनिट्स को सिलेक्ट किया जाता है. सो ओवर हियर ऑल्सो सैम्पलिंग इज इनएविटेबल. Now let us move on to the next one, that is limited availability of resources like time, money and experts for conducting an inquiry. Yes, availability of resources भी ध्यान में रखा जाता है, time, money and experts, because yes, each and every firm जो है वो चाहती है कि है ना टाइम कम में, पैसा कम में, एक्सपर्ट्स भी प्रोवाइडेड हो और काम जो है वो हो जाए. लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है सबके पास, ऑब्वियसली बात है, टाइम मनी इज ऑलवेज लिमिटेड, एक्सपर्ट्स भी इतने ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं. नाउ जनरली पॉपुलेशन इंक्वायरी इज अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस ओनली. यस, पॉपुलेशन इंक्वायरी कब कंडक्ट होती है? नॉर्मली जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस होते हैं. यस, रूल्स एंड रेगुलेशन जब भी फॉलो करने होते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ये इसके रीजंस होते हैं. Even in situations where population inquiry is feasible, preference is given to sample inquiry because the population inquiry involves more time, money and manpower. यानी कि कभी कभी क्या होता है, population inquiry is possible, feasible means possible, कि कहीं कहीं पे पॉपुलेशन इंक्वायरी पॉसिबल होता है, मगर फिर भी प्रेफरेंस, फिर भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, फिर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सैम्पल इंक्वायरी पे. क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि पॉपुलेशन इंक्वायरी में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं और ज़्यादा मैन पावर यानी कि एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होती है, ज़्यादा लोग हमें चाहिए होते हैं. अगेन सेम एग्जाम्पल वी विल गो फॉर जो 1000, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 1000 लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और मुझे उनका लिटरेसी रेट जानना है, तो 1000 लोगों का लिटरेसी रेट जानने में इट टेक्स टाइम. और अगर यही मैंने सैम्पल सिलेक्ट किया है, से फॉर एग्जाम्पल विद अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, मैंने 150 लोगों को सिलेक्ट किया, तो 150 लोगों का जो लिटरेसी रेट है वो जानने में ऑब्वियस सी बात है मुझे कम टाइम लगेगा, मुझे पैसे भी कम लगेंगे और ज़्यादा लोगों की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो this is the example of it. Moreover, a large number of errors creep into population inquiry because the task of organizing population inquiry is extensive and complicated. दूसरा हमें रीज़न ये बताया गया कि population inquiry जो है इस काम में कभी कभी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी errors, गलतियाँ निकल जाती हैं. एंड इसका रीज़न ये है कि पॉपुलेशन इंक्वायरी इज़ एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और जो चीज़ टफ होती है उसमें एरर्स कभी कभी हो जाते हैं. The main objective of sampling is to draw inferences about characteristics of population on the basis of sample inquiry. अब मेन ऑब्जेक्टिव, मेन रीज़न ऑफ सैम्पल इंक्वायरी क्या होता है, इज़ टू कम टू अ पर्टिकुलर say a conclusion about the characteristics of population on the basis of sample inquiry. यानी कि जो मेरा रिजल्ट होगा ना सैम्पल इंक्वायरी का, वो पॉपुलेशन पर भी वही रिजल्ट आना चाहिए. The measures such as mean, standard deviation, etc. calculated from numerical data obtained from sample units are called sample statistics. Now, sample statistics का meaning हम लोगों को यहाँ पे पता है, जो measures हम calculate करते हैं, mean, standard deviation जो हमने पिछले chapters में किए, etc. calculated from the numerical data obtained from sample
ऑब्वियस ही बात है, सारे डेटा न्यूमेरिकली थे, एंड जो सैम्पल में से होते हैं उन्हें हम सैम्पल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, एंड ऑल दीज मेजर्स फॉर पॉपुलेशन डेटा आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और अगर यही मेजर्स अगर हम पॉपुलेशन डेटा में से करें तो उसे पैरामीटर्स कहा जाता है। Now students, with this I'm done with my today's e-class. It's but natural, yes, you all know that I'll continue the same chapter in my next e-class also. Till that time, take care of yourself. Thank you.